Why have I used here since? Because morning time is a starting time, right? तो यहाँ पे since का यूज करा मैंने. मॉर्निंग एक स्टार्टिंग टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है. since का कभी भी यूज फिक्स टाइम के लिए यूज नहीं करा जाता है. सर नहीं करा जाता है? हमारे टीचर ने तो ये पढ़ाया था कि since is used to talk about fixed time. So you tell me, do you really think that morning time is a fixed time? If your answer is yes, then tell me कि जब आप कहते हो कि सुबह से मैं ऐसा कुछ कर रहा था, so can you point out any point कि किसी भी टाइम को पॉइंट आउट कर पाओगे कि आपका सुबह कितने बजे था? सुबह तो भैया आपका 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका सुबह तो भाई 11:59 तक जाता है, 58 तक जाता है. तो इसमें फिक्स टाइम किधर है? मॉर्निंग टाइम फिक्स नहीं है. Since is actually used to talk about or to indicate the starting point of time, not fixed of time. और मॉर्निंग आपका फिक्स टाइम नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है. रिमेंबर दिस पॉइंट. A lot of people are always confused just to use since and for. Hi and namaskar and welcome back to my YouTube channel. This is Aman Kumar and I welcome you all to my YouTube channel English with Aman. So आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं the use of past perfect continuous tense. इससे पहले हमने पास्ट टेंस के 3 पार्ट को कंप्लीट करा है, चाहे वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, और लास्ट वीडियो हमने बनाया था पास्ट परफेक्ट टेंस पे, जो लगभग हमारा 23 to 24 मिनट्स का वीडियो था. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करा आपके साथ. तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को वॉच आउट नहीं करा है, सो मेक श्योर वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन कम टू दिस टॉपिक एज वेल. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग. हाँ, तो इधर मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की रूल्स लिखे हैं, स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, एंड हियर यू कैन सी राइट नाउ above my head there is a definition of past perfect continuous tense. So first of all let me take you through the definition or the use of past perfect tense, and then we'll move on to the structures or the rules of past perfect tense. So without further ado let's get the ball rolling. सो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द एक्शन, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वी जनरली टॉक अबाउट द एक्शन started in the past time. So will be indicating the action started in the past time and continued happening for a period of time. यानी कि हम उस एक्शन की बात करेंगे यहाँ पे जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड इट kept happening, it continued happening for a certain period of time, or you can simply say for a period of time. So I repeat one more time, talking about the action started in the past time and continued or kept happening for a period of time. यानी कि वो एक्शन जो स्टार्ट हुआ पास्ट में and it kept going on, it continued happening for a period of time. वो एक्शन जो स्टार्ट हुआ पास्ट में और चलता रहा किसी समय तक, that's where comes past perfect continuous tense. So now I'm going to take you through the structures or the rules of past perfect continuous tense, and then we'll move on to the examples as well. So let's get started. As you can see here at positive sentence structure, again we got to mark subject. Doesn't matter what the subject you have, either you have singular, plural, or what kind of or any kind of subjects you may have, right? So simply mark a subject here at the beginning of the sentences, and then you go through had been together. So had been together यहाँ पे main helping verb का काम कर रहा है. So first of all subject, then you got to use had been, and then उसके बाद आपको verb की फर्स्ट फॉर्म लगाना है प्लस ing. जैसे आपका वर्ब अगर गो है, सो दैट विल बिकम गोइंग, कम है दैट विल बिकम कमिंग, टीच है दैट विल बिकम टीचिंग, स्पीक है दैट विल बिकम स्पीकिंग, और एनी वर्ब आउट देयर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू that will be used with the help of ing as well. So if there is a word like understand, so basically understand is stative verb है, understand को छोड़ दीजिए. Listen, so that listen will be converted into listening.
speak will be converted into speaking. So that's how first form of the verb using ing will be converted into fourth form of the verb, which is known as fourth form of the verb as well. And then object and then time expression of words. So जो word आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो सेंस देख रहे हो और ये फोर देख रहे हो, इसको एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोला जाता है, यानी कि टाइम एक्सप्रेशन है जो आपको टाइम को बताएंगे. और मैंने सेंस फोर के ऊपर पहले वीडियो बना रखा है. सेंस का यूज करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, एंड फोर इज यूज टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट. तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है देन यू गॉट टू यूज सेंस, एंड इफ योर टाइम इज ऑल अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन यू गॉट टू मार्क फोर एज वेल. थैंक यू. ये पॉजिटिव था. लेट्स मूव ऑन टू नेगेटिव. अगेन आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके साथ हैड लगाना है, और आई गेस मैं यहाँ पे नॉट लगाना, नेगेटिव है. सो सब्जेक्ट लगाना है, हैड लगाना है, देन नॉट, देन बी, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद सिंस और फॉर, राइट. इंट्रोगेटिव में भी वही कहानी, सबसे पहले हैड, देन सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, एंड देन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. मेक श्योर यू आर गोइंग टू यूज अ क्वेश्चन मार्क ओनली इन राइटिंग, नॉट इन स्पीकिंग, राइट. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. सब्जेक्ट देन आई मीन हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और अगेन देयर आर टू वर्ड्स व्हिच आर नोन एज टाइम ऑफ एक्सप्रेशन. तो सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, और यू कैन से पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और एक दो पार्ट इसके और आते हैं WH वर्ड के साथ, तो मैंने आपको हर वीडियो में समझाया, कुछ भी नहीं करना होता है. सबसे पहले आप WH वर्ड को लगाएंगे, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर लगा देंगे. और अगर वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है फिर आपको वही कहानी रखना है. सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुम एंड ऑल, एंड देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स लगाना है. सो आई होप कि अब तक हमने समझ लिया है, इसके यूज को देख लिया है, इसके स्ट्रक्चर्स को देख लिया है. नाउ लेट्स गो विद एग्जांपल्स एज वेल. अब हम एग्जांपल की तरफ देखते हैं. सो लेट्स थिंक ऑफ एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम एंड कंटिन्यूड हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो थिंक ऑफ एन एक्शन आउट देयर. सो लेट मी गिव एन एग्जांपल. सो लेट्स सपोज आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश इन द पास्ट टाइम. मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू करा पास्ट टाइम में, एंड आई केप्ट टीचिंग, यानी कि वो मैं पढ़ाता रहा. इट कंटिन्यूड हैपनिंग. आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश पास्ट टाइम इन द पास्ट टाइम एंड आई केप्ट टीचिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट्स वेयर कम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट मी टेक यू थ्रू द एग्जांपल, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. थैंक यू. ओके. सो अगर मान लो कि मैंने पढ़ाने का काम पास्ट में स्टार्ट करा, ठीक है, और वो पढ़ाने का काम एक समय तक चलता रहा, दैट्स वेयर आई गॉट टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट्स गो विद एग्जांपल्स. सो मैं क्या कह सकता हूँ पॉजिटिव में? पॉजिटिव मुझे कहना है, लेट्स सपोज कि जो मैंने पीरियड ऑफ टाइम था वो 3 साल का था, तो मुझे बोलना है मैं 3 साल तक इंग्लिश पढ़ा रहा था. या फिर आप हिंदी में दूसरे तरीके से कह सकते हैं, मैं 3 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा था. देन हाउ कैन आई से? आई कैन सिंपली से सब्जेक्ट इज आई हियर, सो आई वुड से आई एंड देन हैड बीन. I had been. Now here we need first form of the verb along with ing. So what I was doing, I was teaching. So I can say I had been. Teach will become teaching. And timing क्या था मेरा? 3 साल से. 3 years is a duration of time. I cannot use here for since here. I will rather use for. So I would say I had been teaching. I had been teaching. Let's suppose I had been teaching English, right? I had been teaching English for 3 years. So this is your sentence, or this is my sentence as well. I can simply say I had been teaching English for 3 years. So here what can you understand? कि जो टीचिंग का काम था स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम, राइट, एंड इट वेंट हैपनिंग, आई मीन इट केप्ट हैपनिंग. ये काम होता रहा भाई, ठीक है, और एक पीरियड ऑफ टाइम तक खत्म हुआ. वो चलता रहा था, एक पीरियड ऑफ टाइम तक वो खत्म भी हुआ. तो मैं क्या कह दूंगा? आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years. मैं 3 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा था. और अगर मुझे सेम सेंटेंस नेगेटिव में बनाना है, हाउ वुड यू से? लेट्स गो. So this was positive one, right? Now let's go to the negative as well. So I would say I, first of all I लगाना है, then had not.
आई हैड नॉट। देखो नेगेटिव में अगर आपने एक पॉजिटिव सेंटेंस को समझ लिया, उसके थीम को समझ लिया, तो चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव या फिर WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, देयर वॉन्ट बी एनी चेंजेस, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव सेंटेंस along with the precise definition or the use of any tense out there. Thank you. So I had not been teaching English for 3 years. So my sentence is I hadn't been teaching English for 3 years. ये हमारा नेगेटिव बन गया कि मैं 3 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था। Now let's go through the interrogative as well, the interrogative one as well, right? तो interrogative में क्या होगा, सबसे पहले हमें लगाना है had. So I would say had I been teaching English for 3 years और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस है had I been teaching English for 3 years, क्या मैं 3 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा था। लास्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, राइट? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आई कैन सिंपली से had I not been teaching English for 3 years और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो आवर सेंटेंस इज hadn't I been teaching English for 3 years। तो ये आपके चारों एग्जाम्पल थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको WH वर्ड के साथ बताता हूँ। लेट सपोज अगर मुझे बोलना पड़े मैं 3 सालों से इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा था, so, जैसे कि मैंने आपको बताया कि WH वर्ड को सबसे पहले लगाना है। बेसिकली यू गॉट टू यूज एनी WH वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस एंड देन यू कैन यूज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स एज वेल और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एज वेल। सो लेट मी टेक यू थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव। सो अगर मुझे ये बोलना पड़े आप 3 सालों से इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे थे, देन आई कैन सिंपली से व्हाई हैड आई, अगर मुझ पे आ जाए तो और आप पे आ जाए तो व्हाई हैड आई या व्हाई हैड यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। इसी सेंटेंस को अगर मुझे WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से बोलना पड़े, आप 3 सालों से इंग्लिश पढ़ा क्यों नहीं रहे थे भाई, देन आई कैन सिंपली से व्हाई हैडंट आई या फिर व्हाई हैडंट यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। तो ये आपका एक्चुअल में यूज था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वेयर वी टॉक अबाउट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम एंड कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और कंटिन्यूड हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, एक समय तक चलता रहा, उस एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की एंट्री होती है। फाइन, अब आपको सारे एग्जाम्पल समझ आ गए। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। आप सुबह से शोर मचा रहे थे, मीन्स यू स्टार्टेड मेकिंग नॉइज in the past time. So morning time was in the past, right? Morning time was actually past. So you started doing something in the past time and you kept doing it, man. So the same thing I'm narrating here right now in front of you कि तुम सुबह से शोर मचा रहे थे। I can simply say you had been making a noise since morning. Why have I used here since? Because morning time is a starting time, right? तो यहाँ पे since का यूज करा मैंने। मॉर्निंग एक स्टार्टिंग टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है। सिंस का कभी भी यूज फिक्स टाइम के लिए यूज नहीं करा जाता है। सर नहीं करा जाता है, हमारे टीचर ने तो ये पढ़ाया था कि सिंस इज यूज टू टॉक अबाउट फिक्स टाइम। सो यू टेल मी, डू यू रियली थिंक दैट मॉर्निंग टाइम इज अ फिक्स टाइम? इफ योर आंसर इज यस, देन टेल मी कि जब आप कहते हो कि सुबह से मैं ऐसा कुछ कर रहा था, सो कैन यू पॉइंट आउट एनी पॉइंट, कि किसी भी टाइम को आप पॉइंट आउट कर पाओगे कि आपका सुबह कितने बजे था? सुबह तो भैया आपका 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपका सुबह तो भाई 11:59 तक जाता है, 58 तक जाता है। तो इसमें फिक्स टाइम किधर है? मॉर्निंग टाइम फिक्स नहीं है। Since is actually used to talk about or to indicate the starting point of time, not fixed of time। और मॉर्निंग आपका फिक्स टाइम नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। रिमेंबर दिस पॉइंट। A lot of people are always confused just to use since and for, but in the very next video, or like if you guys need a separate video on this topic, what's the difference between for and since, then please comment down in the comment section below. Would love to make a separate video and precise information will be given to you guys by me in that particular video. So if you need this video, please comment your answer in the comment section below, right? अब मुझे एग्जाम्पल देने दीजिए।
अब मुझे बोलना पड़ा तुम 2 घंटे से मुझे क्यों देख रहे थे। ये इंट्रोगेटिव WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव है। आप मुझे 2 घंटे से क्यों देख रहे थे। आई कैन सिंपली से व्हाई हैड यू बीन लुकिंग एट मी फॉर 2 आवर्स, राइट। आप सुबह से कुछ खा क्यों नहीं रहे थे। आप सुबह से कुछ खा क्यों नहीं रहे थे। देन आई कैन सिंपली से ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है अलोंग विद WH वर्ड है। सो आई कैन से व्हाई हैडंट यू बीन हैविंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। व्हाई हैडंट यू बीन हैविंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। ये जो हैविंग मैंने लगाया वो ईट के जगह रिप्लेस करा गया है, टेक के जगह रिप्लेस करा है। सो इन एडवांस इंग्लिश यू कैन फाइंड द पीपल यूजिंग हैव इंस्टेड ऑफ यूजिंग ईट और टेक, राइट। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन ग्लो में डालना है, कमेंट सेक्शन में डालना है और मैं आपके आंसर को चेक करूंगा जिससे मुझे पता चल पाए कि आप एक्चुअल में वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखे हैं एंड यू हैव लर्न समथिंग। यस, सो द सेंटेंस फॉर यू इज तुम मुझे इतनी देर से तंग क्यों कर रहे हो। तुम मुझे इतनी देर से तंग सॉरी ये सेंटेंस ही मैंने गलत बोल दिया। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। अच्छा इस पार्ट को इतना काटना पड़ेगा, ठीक है। सो एक सेंटेंस जो सेंटेंस आपके लिए एक सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में हाँ। So the sentence which is for you is आप मुझे सुबह से तंग क्यों कर रहे थे। आप मुझे सुबह से तंग क्यों कर रहे थे I mean आप मुझे सुबह से तंग क्यों कर रहे थे। So this is your sentence. You got to translate this sentence in the comment section below. Basically you can drop your answer in the comment section below. Would like to check out your answer and would like to let you know whether you have answered correctly or not. So with this note I'm just winding off this video and I will see you in the next video, in the very next video with an interesting topic that is going to be based on future tense, I guess. Now I'm going to bring the series of future tense. I'll be making video on future indefinite tense, continuous, perfect and the last tense as well, future perfect continuous tense as well. Yeah. So yes, signing off. This is Aman Kumar. If you have any doubt, any suggestion or any feedback for me, then do let me know in the comment section below. Till then, bye. Take care. Stay safe. And yes, thank you so much, guys. Thank you.